हो Okay, गया तो recording शुरू हो गई. ओके. Yeah, we also saw the 9 antarayas and Abhyas Vairagya Abhyam Tan Nirodha and Panchavritti also. So the all are concept in first chapter, that is the Samadhi path. In Samadhi path there is one beautiful and very important concept is Chitta Prasad. We are going to see that only. Before that, Patanjali Yoga Sutrani. The sutra means definition: Alpa Aksharam, Asandigdam, Saravata, Vishvatu Mukham, Astubham Anavandyacha, सूत्र विदो विदुही. ये ज्ञानी लोगों ने इसको वर्णन ऐसा किया है. नाउ ये हम लोगों ने देखा है अल्पाक्षरम वॉट इन शॉर्ट कंसाइज वर्ड्स, असंदिग्धम मीन्स नो डाउट ऑथोरेटिव, सारवत मीन्स इसेंस brief statement, Vishwatumukham means universal, globally approved, Astobham means universal, global defect, defect, defect करके है. So Anavandhyam means application to everywhere, and Sutra means a rule or aphorism manually. Okay. Now uh, this is not a shloka. This is a sutra. Always be care or be aware about while you are speaking. Patanjali shloka is not. Okay. Patanjali's sutra and Bhagavad Gita shloka. Okay. Shlok means what? It is the format which is set in some meter. छंद में होता है वो. There can be 2 or 4 setting, but number of letters should be equal in all sections. The meter means छंद और rhyme. Okay, rhythm में होता है. So श्लोक और सूत्र में डिफरेंशिएट करना है ठीक से. Always while speaking anywhere you have to speak like a Patanjali Yoga Sutrani or Maharshi Patanjali's Yoga Sutra. Okay. Now this is the concept Chitta Prasadan. So Chitta Prasadan, before that we are going to see the each and every sutra. What is meant by Chitta Prasadan? Chitta means what and Prasadan means what? Means to purify the mind. We are consider temporarily to Chitta means mind. So purify or give a bliss or cultivate your Chitta by Dhyan. What is pure Chitta? From yogic point of view, Chitta without vrittis is a pure Chitta. Without vritti अगर चित्त है तो that is in pure form. जैसे मैंने परसों के दिन शीन वृत्ति अभिजातस्य डायमंड दिखाया था, ट्रांसपेरेंट डायमंड. माइंड इज इम्प्रूव व्हेन crowded with thoughts. Lesser the thoughts, better the mind. Mind without a single thought yet alert is the pure mind. Chitta without any vrittis is called sattva in yogic language. It is enlightened mind, Vishuddha buddhi. Such pure chitta acts as a perfect mirror in which Purusha is reflected in his natural state. So we are going to see how to cultivate, how to become a pure to our chitta. There are some techniques, there are some concepts, the various concepts. अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये करो, वो नहीं आ रहा है तो वो करो. Giving option. Maharshi Patanjali giving option to do dhyan various condition or various type. So first is, if you are sticking in any antaraya, there are 9 antarayas: व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि. इसको अगर कम करना है, इसको अगर हमको हटाना है, वी हैव टू ओवरकम ऑन द अंतराया. यू हैव टू डू तत प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास. तत मीन्स ही हु, whose. प्रतिषेध means reduce, diminish, and artham means meaning. The one tattva, the principle, truth is one, is only tasya vachaka pranava.
What is the Ekatattva Abhyas? The Abhyas is enthusiastic practice of chanting or reciting the Pranava Japa. महर्षि पतंजलि ने इसको 1.32 में बताया है कि आपको तस्यवाचक प्रणवा करना है. You have to recite the pranava. How to recite the pranava? ततः जपः अर्थ भावनम. अर्थ के साथ में आपको उसको चैंट करना पड़ेगा. Then your mind will be purified because of the chanting or reciting the Ekatattva Abhyas. So this is the first one sutra. If you are not comfortable with one syllable or the Tattva Abhyas, that is a Tasyavachaka Pranama, then you can do Maitri Karuna Mudito Upekshanam Sukha Dukkha Punya Apunya Vishayanam Bhavanatha Chitta Prasad. What you have to do? All that is mutable in human beings is harmonized through the cultivation of love, that is a Maitri, helpfulness, that is a Karuna, conviviality, Mudito, and neutral, Upeksha, in situations that are happy, painful, successful, or unforgettable. So, cultivating attitudes of friendliness, compassion, gladness, and indifference respectively towards happiness, misery, virtue, and vice, mind can be purified. Most of the mental distractions are because of wrong attitude. What we are right now, we are talking about that. We have a wrong attitude towards life. Our interaction with the environmental, physical, and mental is the main source of mental modification. Patanjali says one must have attitude of friendliness towards someone who is happy. लेकिन हमारा क्या होता है, नेचुरली हम लोग क्या होते हैं, जो हैप्पी होते हैं उनके प्रति हम लोग जेलस होते हैं. ऐसे कैसे, उसके पास ऐसा पैसा आया और वो गाड़ी लिया है और वो हैप्पी है, वी आर जेलस. अरे मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो और मैं एक ही साथ काम कर रहे हैं, मुझे भी उतना ही पगार है, उसको भी उतना ही पगार है, बट somehow the destiny giving beautiful life to that person, you have to make a friendship. ठीक है, उसका भला हुआ है, उसके बाद में मेरा भला होना चाहिए. जैसे अनुप्रिया ने भेजा था, उसका मंगल मेरा मंगल, है ना, एक साथ में होना चाहिए. तो मैत्री करनी है. नेचुरली जो हम लोग डिटॉक्सिफाई हो गए हैं, उसको लेके नहीं आना है. सो मैत्री, फ्रेंडली, जो हैप्पी है उसके साथ में करनी है. देन करुणा, आपको कंपैशन रखना है, जो दुखी है उसके साथ में. जनरली क्या होता है, किसी का अगर नुकसान हो गया, दुख हो गया, तो हम लोग हंसते हैं, अच्छा हो गया, बहुत ही वो बड़ा ही मार रहा था, मेरी कार, मेरा ये, मेरा बंगलो, अच्छा हो गया उसका. नेचुरली ये होता है हमारे साथ में. यू हैव टू कल्टिवेट इट, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड विद दैट पर्सन. अरे नहीं नहीं, बुरा हुआ है क्योंकि उसका नुकसान हुआ है, भले उसने कितनी भी सारी बड़ाई मारी हो या बहुत सारा उसने हमारे पे हक जताया हो, यानी एनीथिंग ही डिड इन हिज पास्ट लाइफ, हमको उसके साथ में अच्छा बर्ताव करना है. ये दिस इज अ बिगिनर स्टाइल और बिगिनर स्टेट टू एक्ट विद द पीपल. नव मुदितो, जो पुण्यवान लोग हैं, जो बहुत ही अच्छा करते हैं, दान धर्म करते हैं, उनको, उनके साथ में हम लोगों ने आनंद व्यक्त करना है. लेकिन क्या होता है, कोई बंदा अगर देखो, कोई साहूकार रहता है या कोई बड़े आदमी रहते हैं, वो लोग रिमोट एरिया में कई बार, एक उदाहरण देता हूँ कि एक साहूकार रहता है या बड़ा आदमी, श्रीमंत आदमी रहता है, तो वो क्या करता है कि रिमोट एरिया में एक हॉस्पिटल खोल देता है. तो हॉस्पिटल खोलने के बाद वहां पे लोग इतना ज्यादा नहीं आते, लेकिन हॉस्पिटल खोलने का उसका जो अंदाज है या उसका जो एटीट्यूड है वो अच्छा है. लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे वो, उसको क्या, बहुत पैसा है उसके पास, टैक्स बचाने के लिए उसने हॉस्पिटल खोला होगा, उसका ब्लैक मनी उसने अच्छा करने के लिए किया होगा, या वो अभी बहुत सारा पाप किया है तो अभी पुण्य कर रहा है, इसके लिए अच्छा वर्चुअस पर्सन बन रहा है, इसके लिए किया होगा. उसको छोड़ देना है, निग्लेक्ट इट. उसने किया है वो काम, उसको प्रेज करना है,
उसमें आनंद व्यक्त कर रहे हैं, अच्छा हुआ उसने ये खोला, उसकी वजह से सभी लोगों को थोड़ा बहुत फायदा मिले। लेकिन हमारा नेचुरली हमारा जो एटीट्यूड वो अलग रहता है। वी हैव टू चेंज इट विथ अवेयरनेस, सजगता के साथ में। ये सब कुछ हमारे माइंड में डिटॉक्सिफाई करने के लिए आते हैं, उसको चित्त को प्रसादन करने के लिए हमको ये करना है। नाउ जो अपुण्य आदमी है, जो पापी है, जो बुरे काम करता है या टॉक्सिक रहता है, हमारे आजू बाजू भी बहुत सारे होते हैं टॉक्सिक पीपल। अरे ये मत कर, वो मत कर, ये करेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, हम लोगों को उल्टा सीधा एडवाइस देके हम लोगों को जो अच्छा काम होता है वो बिगाड़ देते हैं। तो बी अवेयर, डोंट react or respect or giving the response that person, you have to neglect और ignore करना है उनको। जैसे ये सिंफुल पर्सन जो है उसके साथ में एक जीसस के साथ में एक मैं थोड़ी छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ। तो जीसस क्राइस्ट सॉ अ वुमन रनिंग टुवर्ड्स हिम, अ मॉब वाज पेल्टिंग द स्टोन्स एट हर, उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे। एज ही शी hid behind Christ, people told him to move away, आप बाजू हो जाओ हमको देखना है। they told Christ, she is a sinner, the law of the land is stones must be pelted at sinners till they die. But okay, said Christ, but one must be pelted only by those who have never committed a sin. लेकिन ठीक है, ओके, आप इनको मारो, लेकिन मुझे सबसे पहला पत्थर जो है वो ऐसा बंदे ने मारना है जिसने कभी सीन ही नहीं किया है, कभी उसने पाप ही नहीं किया है, ऐसे बंदे ने मारना। तो जीसस देन सेड, हेट द सीन एंड नॉट द सीनर। तो इसके आगे भी महर्षि पतंजलि क्या बोल रहे हैं? महर्षि पतंजलि ने ये बोला है कि ठीक है, पापी को भी आपको हेट नहीं करना है और पाप को भी हेट नहीं करना है, यू हैव टू न्यूट्रल इन दैट टाइम। तो इस तरह से आप चार लोगों के प्रति, दीज आर द फोर पीपल्स इन आवर सोसाइटी, वी कैन रिएक्ट, वी कैन गिव अ रिस्पॉन्स टू देम फॉर अर चित्त प्रसादन। देखिए ये दूसरे के लिए नहीं है, दिस इज फॉर अस ओनली। हमारा चित्त प्यूरिफाई होने के लिए, हमारा मन शुद्ध होने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। जैसे टॉक्सिक होता है तो हम लोगों को देखो मन हमारा निराश होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो हम लोगों को बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, एंग्जाइटी में से फिर फोबिया आ जाता है, फोबिया में से फिर हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, या हमारा शरीर कंप में आता है, अंग में जैत्व होता है, शिवरिंग होता है ना। तो ये चित्त प्रसादन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें और एक चीज ऐसी बताइए कि बुद्ध ने एक चीज बताई है, उसके पहले ऐसा बताया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्य। हमारे पास चॉइस होता है। देखो कोई भी अगर एक्ट कर रहा है, कोई भी अगर बंदा हमारे पास कर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर तीन प्रकार के हम लोग उसको रिएक्शन दे सकते हैं। एक तो एक्ट करना, एक तो नॉट टू एक्ट, एंड वी हैव टू एक्ट डिफरेंटली इज द फ्रीडम वी ऑल पजेस। हमारे पास तीन प्रकार के कर्म करने की चॉइस है। एक तो उसको प्रति एक्ट होना, एक्ट न होना, एक्ट डिफरेंटली। तो an ordinary person's life is full of actions and reactions. Only the enlightened ones act in a different way. सो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो सब आप एनलाइटेंड हो गए हो, तो आप जो भी अभी करोगे, जो भी रिएक्ट करोगे, वो डिफरेंट वे से करोगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो वंस अ मैन गॉट वेरी एंग्री विद बुद्ध, दिस इज अ वन एग्जाम्पल फॉर बुद्धा स्टोरी। बुद्ध के जीवन में एक स्टोरी हुई थी कि एक बंदा जो है वो एक बंदा जो है वो बहुत गुस्सा हो गया बुद्ध के साथ। बुद्ध को बहुत सारी गलत गलत बातें बोलने लगा, गालियां देने लगा, बहुत सारी चीजें। फाइनली वो चुप हो गया, बातें बोल के सुना के या उसको गालियां दे के चुप हो गया। तो उसके बाद में फिर बुद्ध बोला कि
बुद्ध को उसने पूछा कि आपने, मैं इतना आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप रिएक्ट नहीं हो रहे हो कुछ। तो बंदा बुद्ध बोले कि देखिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, अगर वो मैं नहीं लूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, तो क्या होगा, वो मेरे पास रहेगा। जो बंदा था वो बोला कि वो मेरे पास रहेगा। तो वैसे ही है, जो आपने अभी मुझे दिया है, बातें बातों में से मुझे गालियां दी, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये आपके पास ही रह गया। तो इस तरह से आपके पास चॉइस है कि आप किस तरह से कौन से एक्शन के ऊपर रिएक्शन देते हो। ये आपके पास चॉइस है, आप उसको आराम से डील कर सकते हो। बेटर यू एक्ट, बेटर यू डोंट एक्ट, और यू कैन एक्ट डिफरेंटली। उसको डिफरेंटली हैंडल करने की कोशिश करो। दिस इज द मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा। Now this is the second slide, which is I made by means the word to word अर्थ दिया है, मीनिंग्स दिए हैं। मैत्री मीन्स लव, फ्रेंडलीनेस, करुणा हेल्पलेसनेस, एम्पैथी, मुदितो चेयरफुलनेस, उपेक्षा इंडिफरेंस। और ये उसके प्रति करना है, मैत्री के प्रति सुख, और करुणा के प्रति दुख के प्रति करुणा, और जो भी पुण्यवान लोग हैं उसके साथ में आनंद, और अपुण्य जो है उसके साथ में उपेक्षा। आपको ये अगर करेंगे आप, तो आपका मन चित्त आपका शुद्ध हो। नाउ सेकंड इज प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, आप कर्म नहीं अच्छे कर सकते हो, तो यू डू वन थिंग, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन मीन्स exhale, discharge, eject from your body the air, और आपका एक्सेलेशन करना है। इट लुक लाइक अ प्राणायाम, कपाल भाती, और इट लुक लाइक अ वी कैन से सम टाइम एक्सेलेशन करते हैं उस टाइप पे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज डिफरेंट। इसमें क्या है, प्रच्छर्दन करने के बाद विधारण, विधारण देखो, होल्ड इन, होल्ड बैक, स्पेशली यू हैव टू होल्ड द ब्रीथ। आपको वहां पे अवेयर रहना पड़ेगा जब आप ब्रीदिंग को होल्ड करोगे। एट दैट टाइम देर इज नो ब्रीदिंग हैपनिंग, और ब्रीदिंग वहां पे होती नहीं है। अगर नहीं होगी तो आपके मन में थॉट नहीं होगा, थॉट नहीं होगा, यू विल गेट ब्लिस। देखिए कई बार लोग अभी ऐसे करते हैं कि कोई स्ट्रेस आ गया या कोई संकट आ गया, तो संकट में हम लोग क्या करते हैं, हाँ हो गया, एक से एक बार खत्म हो गया, मैं उसमें से बाहर निकल आई, करते हैं ना हम लोग, उच्छ्वास छोड़ते हैं, हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं। लाइक दैट ये इन्होंने एक प्रकार की टेक्निक बताई है कि यू विल प्रच्छर्दन विधारण, विधारण मीन्स स्पेशली धारण करना है, वॉट एवर द ब्रीथ इज गोइंग इनसाइड और होल्डिंग, यू आर इन दैट टाइम, दैट इज अ प्राणस्य। ओके। तो इसमें महर्षि स्वामी स्वात्माराम ने भी बोला है, अपने हम लोगों ने देखा है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगो स्थानो मापनोति ततो वायु निरोधे। जैसे सांस चलेगी वैसे आपका चित्त चलेगा, मन चलेगा। तो अगर आपकी सांस रुकेगी, होल्ड होगी, या आप उसको स्लोली भी धारण करोगे, स्पेशली उसको होल्ड करोगे, तो क्या होगा, मन विचलित नहीं होगा, मन स्थिर रहेगा, और स्थिर मन रहेगा तो आपकी बॉडी भी साउंड रहेगी, आपका मन भी साउंड रहेगा। ओके। द नेक्स्ट इज विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधन। Before I am going this Vishayavati va pravrutti utpanna, anyone have any? Okay. Now विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। अभी यहाँ पे देखिए महर्षि पतंजलि ने सिर्फ 2 ही बार मन का उपयोग किया है, धारणा सूच मनसा योग्यता, प्राणायाम का बेनिफिट, और यहाँ पे विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधन। विषय means what? Entity or object, anything, you will take anything
समझो हम लोग बार बार देखिए सनफ्लावर लेते हैं, है ना, सनफ्लावर या चमकने वाला जो भी, अभी आगे जाके हम लोग विशों का वा चतुष्पति देखेंगे तो वो अलग अलग टेक्निक है। सो विषयवती प्रवृत्ति मीन्स हायर सेंस परसेप्शन लाइक फीलिंग ऑफ डिवाइन टच, स्मेल और साउंड। ये व्यास भाष्य में लिखा है, उस तरह से मैं समझा रहा हूं। हम लोग अगर वृत्ति और प्रवृत्ति में रहते हैं, वृत्तियां कैसे रहती है, अलग अलग वृत्तियां रहती है। अभी मैं आपके सामने देख रहा हूं तो मेरे सामने स्क्रीन दिख रही है, मैं थोड़ी बार साइड में देखा तो मुझे दीवार दिखेगी, उसके बाद में और थोड़ा मैं बाहर देखूंगा तो मुझे विंडो में से बाहर जाते समय एक कौवा जाते समय दिख रहा है। तो अलग अलग टाइप में ये वृत्तियां है। बट प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मीन्स स्पेशली यू आर टेकिंग वन ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे विषयवती मीन्स आप एक विषय के ऊपर एक रूप हो गए हो। प्रवृत्ति आपने वो निर्माण की है, समझो सनफ्लावर, हम लोग सनफ्लावर को लेते हैं। मैंने देखा है, मैंने बताया धारणा ध्यान समाधि में क्या दिखाया है, सब्जेक्ट, द प्रोसेस ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तीन चीजें जरूरी है ना, द थ्री फैक्टर्स आर देयर ना धारणा में। तो ध्यान में क्या होता है, टू फैक्टर्स आर देयर, subject and object, the process of seeing is not there, and the last one samadhi में क्या होता है, the object means you are, the Krishna consciousness means you are the Krishna, you are that sunflower, like that। यहाँ पे विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, आप एक स्पेशल परसेप्शन में, दिव्य डिवाइन परसेप्शन आप फील करते हो। तो उसमें क्या क्या होता है, डिवाइन स्मेल, दिव्य गंध, डिवाइन टेस्ट, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द। दीज आर द फाइव तन्मात्रास। मीन्स यू आर गोइंग इन अ वेरी सटल ध्यान और सटल कॉन्टम्पलेशन, मेडिटेशन। स्थिति निबंधनी, मन को बांध के रखना। क्या लिखा है, मनसहा, वेरी चित्त कंट्रोल, थॉट्स कंट्रोल, ट्रिगरिंग ऑफ चित्त कॉन्सेंट्रेशन। उत्पन्ना, ब्रिंग अबाउट और अराइज, कम फ्रॉम, मनसहा, माइंड में से, अंडरस्टैंडिंग में से आपको वो बाहर निकलेगा। यू कैन होल्ड यूर ऑब्जेक्ट विद अ पर्टिकुलर एरिया, धारणा कि जैसे ही इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि यू हैव टू गो इन तन्मात्रा, अ सटल लेवल। जैसे पंच महाभूत इज ग्रॉस लेवल है, पंच महाभूत हम लोग देखते हैं, वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील, बट तन्मात्रा इज वेरी सटल। तो तन्मात्रा में क्या होता है, दिव्य गंध। आप आपके टंग के ऊपर ऐसा समझ लो कि अग्रभाग के ऊपर कोई टेस्ट आपको मिल रहा है, दैट इज अ टेस्ट प्लेस सलाइवा। You are listening the sound, which sound, you can listen your breathing sound, you can listen your heart sound, that is very subtle। सोहम का जप करते हो, while inhaling, so while exhaling हम, है ना। तो दिस इज द विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसहा स्थिति निबंधन। नाउ ये भी नहीं हो रहा है तो और थोड़ा आगे जाके सटल के ऊपर जाएंगे, विशोका व ज्योतिषपति। विशोका व ज्योतिषपति मतलब क्या, इन योगिक कॉन्सेप्ट देर इज अ, मानना है ऐसा कि हमारे अंदर एक प्रकार की ज्योति है, दैट इज वेरी प्योर। ओके, सो योगिक क्रिया करते समय त्राटक विच इन्वॉल्व्स रिलैक्स्ड कंसंट्रेशन ऑन द फ्लेम इज गुड फॉर नोविसेस। जो बिगिनर लेवल है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो एडवांस लेवल पे है वो क्या करते हैं, आपके अंदर एक ज्योत है, जैसे बुद्ध ने भी बताया है कि नीले कलर की एक ज्योत आपके अंदर है, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है, जो शोक रहित है, जो आपको शोक नहीं देगी, जो आपको तकलीफ नहीं देगी, पेन नहीं देगी, सफरिंग नहीं देगी। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट इनर साउंड, सॉरी इनर लाइट, ज्योतिषमती, concentration of the inner light। So this is one technique given by Maharishi Patanjali। Now the second technique, these are the 8 techniques we are one by one seeing।
Now this is Vitaraga Vishayam Va Chittam. Vitaraga means what? Seeds. Vita means seeds or stopped. And Raga means attachment, desires, anything like that. Your क्या बोल सकते हैं हम लोग राग के लिए? अटैचमेंट एंड डिजायर, स्टिकिंग टू एनी पर्टिकुलर चीज थिंग्स के ऊपर आप आसक्ति, शक्ति, यस आसक्ति। तो आसक्ति के लिए आपको जो ऐसा बंदा है जिसकी आसक्ति कम हो गई है, ऐसे कौन कौन बंदे हैं आपके पास? है क्या, मालूम है कोई ऐसा? वीतराग विषय, जिसके डिजायर्स नहीं है, जो अभी इसमें जिंदगी में नहीं है, उनका मृत्यु भी हुआ है, ऐसे लोग कौन है? वीतराग विषय व चित्तम, ऐसा चित्त है जिसका कि उसका डिजायर नहीं है, उन्होंने मोक्ष पाया है या सन्यास लिया है। कौन कौन हो सकते हैं? कंपनी ऑफ होली मैन। तो होली मैन इज, हु इज होली मैन? कौन है पवित्र ऐसा बंदा आपके योगिक गुरु परंपरा में, मालूम है क्या? ज्ञानेश्वर। यस, ज्ञानेश्वर महाराज और सत्यानंद सरस्वती और विवेकानंद। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और रामकृष्ण परमहंस, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी मेनन। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इनका जो डिजायर है या इनका चित्त जो है वो कंप्लीटली डिजायरलेस है। दे आर स्टॉप्ड, दे टुक संन्यास। ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्ति महाराज, साई बाबा ले सकते हैं आप, और दयानंद सरस्वती, यू कैन टेक बिहार स्कूल ऑफ योगा के सत्यानंद सरस्वती, वो भी हो गया। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद, जो हमारा थाने स्कूल ऑफ योगा का जो लोगो है, स्वामी विवेकानंद इज अ वीतराग विषय व चित्तम। उनके डिजायर ही नहीं थे, उन्होंने समाधि ले ली 39 ईयर में। तो ऐसे लोगों के प्रति आप सत्संग या आप उसका इमेज जो है वो लेके आप अगर उसका सोचोगे, तो यू विल गेट द प्यूरिफाइड माइंड, आपका माइंड प्यूरिफाई हो जाएगा। नाउ ये भी नहीं हो रहा है तो आपको स्वप्न देखना है। देखिए, स्वप्न निद्रा ज्ञान अलंबनावा। अभी आप अगर स्वप्न देख रहे हो, जो भी आप देखे, मनी वसे स्वप्नी दिसे, ऐसा मराठी में बोला जाता है। जैसे हम लोग मन में विचार करते हैं वैसे ही सपने में आता है, ऐसा इसका अर्थ है। वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू विल सी इन यूर ड्रीम। तो आप अगर अच्छा जो भी है देखेंगे अगर स्वप्न में, तो आप बहुत ही प्यूरिफाइड बन जाओगे। देखो, स्वप्न देखने के बाद अगर आपके जो भी डिजायर है, आप समझो अगर ऐसा डिजायर है कि मैं शिमला जाऊंगी, मैं वो बर्फ में मैं थोड़ा सा घूमूंगी, या मैं प्लेन से मैं ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ, मैं पूरा देश घूमना चाहती हूँ, या मैं पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ, क्रूज में बैठना चाहती हूँ। आप अगर वो सपने में अगर करोगे, सपना देखोगे, तो आपका कैथारसिस होगा कि नहीं होगा? आपका मन शुद्ध होगा कि नहीं होगा? आपका मन शांत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने सपने में वो पूरा कर लिया। सी हियर इज व्हाट इज द टेक्निक, यू हैव टू प्यूरिफाई योर माइंड। आपके चित्त को प्रसन्न करना है ना? तो स्वप्न निद्रा, स्वप्न का आपको आलंबन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ सपोर्ट टू स्वप्न निद्रा इन डीप स्लीप। इन डीप स्लीप क्या होता है? डीप स्लीप अगर गिर गया तो क्या होगा? डीप स्लीप में एक आध आदमी बंदा गया तो क्या होता है? अभाव प्रत्यय आलंबना। यहाँ पे क्या है? ज्ञान आलंबना, नॉलेज मिलेगा आपको। आप अगर ये करते हो तो यू विल बिकम न्यू, बिकॉज ऑफ द ज्ञान आपको मिला, नॉलेज मिला आपको, आपका आपका प्यूरिफाई हुआ, आपका कैथारसिस हुआ, आपका माइंड।
चलो ये भी नहीं हो रहा है, आपको सपना भी नहीं गिर रहा है, आपको नींद भी नहीं आ रही है, आप गोली खाते हो नींद के लिए, तो आगे है यथा अभिमत ध्यान द्वा। इसका अर्थ ऐसा है कि वॉट एवर यू टेकिंग यूर सब्जेक्ट टू मेडिटेट ऑन एनीथिंग, वो आपका लवर हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, वॉट एवर यूर बहुत ही प्रिय चीज है आपका मोबाइल, यू कैन टेक दैट थिंग ऑल्सो। बट ये करते समय आपको जो भी आपको करना है, आपको सात्विक विषय लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट इज सत्व, तो ही वो बहुत ही फुल फिट होगा, आपका वो काम आएगा जो भी मेडिटेशन किया है। नाउ यहाँ तक मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ तक अगर कोई आपको क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी, मैं यहाँ पे रुका होता हूँ। नाउ द सेकेंड चैप्टर इज साधन पाद। इन साधन पाद द फर्स्ट सूत्र इज गिवन फॉर क्रिया योग। इन क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिया योग? तो क्रिया योग का पर्पस जो है वो समाधि भावना मिलनी चाहिए, क्लेश का तनुकरण होना चाहिए, जो भी 5 क्लेशास है उनका तनुकरण होना चाहिए। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप मीन्स तपना, तपति, तपति इस शब्द से तपना मतलब बॉयल होना या आपको अग्नि उत्पन्न करना, आपके जो भी चीज है। तो आपको प्रैक्टिस कैरेक्टराइज बाय रिगर एंड विजिलेंस टुवर्ड्स इटसेल्फ विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम इज नोन एज अ क्रिया योग। तप मीन्स ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन, इंटेंसिटी। 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और 50-50 करेंगे तो आपको कोई भी रोग होगा नहीं। लेकिन हमको क्या होता है, हमको कोई तो हमारा साथी चाहिए, तू आएगी तो मैं करूंगी। आज तो जाने दे, आज तो इंटरनेशनल योगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आज नहीं करते, आज थोड़ा सा आइसक्रीम खाते हैं, घूमते हैं। बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है हमारे यहाँ पे, हम डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। आज से मैं योग करूंगी, ऐसे बहुत सारे आरंभवीर शूर रहते हैं, है ना। 1 जनवरी से मैं योग शुरू करूंगा, 1 जनवरी से मैं मेरे हेल्थ की तरफ ध्यान दूंगा। 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 5 तारीख के बाद अरे जाने दे, वो मेरा बहुत काम पड़ा है मुझे, तो आज मैं नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तप बहुत ही, प्राणायामम परम तप ऐसा बोला है, प्राणायाम तो सबसे परम तप है, वो नहीं कर पाते। ऐसे कौन लोग हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो रोज रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं? कितने लोग हैं? सही बताना, झूठ नहीं बोलना है, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। मुझे हाँ, सर मैं करती हूँ धारणा करते हो रोज? myself Saraswati also. Wow, very nice. So clap for him, her. Both of the persons are international वुमेन्स डे के लिए इनको ताली बजाएं, क्योंकि ये दोनों भी करते हैं। वेरी नाइस। ओके, स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ नॉलेज। आज दिन भर में मैंने कितना काम किया है, आज दिन भर में मैंने कितने लोगों से इंटरेक्ट किया है, और वो इंटरेक्ट करते समय मैं कितने लोगों से बुरा बर्ताव करी हूँ या अच्छा बर्ताव करी हूँ या न्यूट्रल मैंने बर्ताव किया है, ये अपने आप का अभ्यास करना है। सेल्फ रियलाइजेशन, वॉट एवर यूर क्वालिटीज, वॉट एवर यूर दोषास, वॉट एवर यूर गुन्स एंड द शाप जो है कर्स ऑल्सो, यू कैन फील इट। और ये एक 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 करके जो भी आपके वर्स्ट थिंग है, जो भी आपके दोष है, वो दोष को निकालना मतलब योग है। तो एक एक दोष निकालोगे तो एक एक आपकी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, और एक एक अच्छी क्वालिटी होगी तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा तो आपका कैरेक्टर बनेगा। आप कैरेक्टर हो रहोगे तो आजू बाजू के लोग भी आपको एक सेलिब्रिटी की तरह मानोगे। ठीक है, लोग नहीं मानेंगे, लेकिन घर में तो लोग बोलेंगे अरे ये सेलिब्रिटी की जैसा है, ये अपना काम बरोबर करती है, अपना अपना जो काम सेल्फ एनालिसिस है वो करती है, और उसको फिर से दुरुस्त करने का काम या अच्छे से बिहेव करने का काम करना है।
अगर किसी को दुखाया भी है दिल, तो उसका उसको सॉरी बोलना है, माफी मांगनी है। जैसे देखिए चर्च में क्या होता है, कन्फेशन होता है। अगर किसी से कुछ गलत हो गया तो वो कन्फेशन कर लेते हैं, अपना चित्त का प्रसादन करते हैं। लाइक दैट you have to analysis your own self on the bed while you are going to sleep. तो आप सेल्फ एनालिसिस करोगे। ओके, नाउ लास्ट वन जो भी आप कर रहे हो, ईश्वर प्रणिधानानि। अभी ऐसा बहुत कम लोग हैं कि ईश्वर को प्रणिधान हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। जितना आप ईश्वर को प्रणिधान हो गए, सरेंडर हो गए, उतना ईगो कम होगा। लेकिन ईगो बढ़ता ही है। अगर आपको नई चीजें मालूम पड़ेगी, आपको नॉलेज आएगा, आप ज्ञानी बनोगे, तो ज्ञानी पुरुष को तो यू ईगो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ईगो को कम करना बहुत जरूरी है। ईगो एक प्रकार से हमारी अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार है, फेविकोल का जोड़ बनाया है। वो टूटती ही नहीं है। जब वो टूटेगी तब आपका ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर और आपके बीच में एक ही दीवार है, दैट इज आई, मैं, ईगो, विच इज वेरी बिग वॉल। अगर बोलेंगे कोई कि सबसे बड़ी वॉल कहाँ पे है और चाइना में है, ऐसा वही नहीं है, अपने पास ही है वो, दैट इज अर ईगो। तो ईगो को कम करना बहुत ही जरूरी है, वो नहीं होता है। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योगा इज टू डिजॉल्व योर ओन सेल्फ। आपको अपने आप को डिजॉल्व करना है, सरेंडर करना है, लेकिन वही नहीं होता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिया योग? द क्रिया योग पर्पस इज सेकंड सूत्र, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थ। Two type of the purpose. Samadhi bhavana, if your practice is aligned with your goal samadhi, the obstacles along your spiritual path, kleshas will disappear and ultimately you will reach your goal. सी हमारा जो ह्यूमन बीइंग का गोल है ना, वो एक ही है। अभी के बारे में ठीक है, अलग अलग गोल्स है हमारे। योगा थेरेपिस्ट होना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को लेवल 2 पास करना है, लेवल 4 पास करना है, किसी को और योगा टीचर बनना है। अलग अलग गोल है। दीज आर द टेम्पररी गोल, दीज आर द वेरी शॉर्ट गोल्स, बट अल्टीमेट गोल इज यू हैव टू मीट योर ओन गॉड। एनलाइटनमेंट होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो आपके अगर क्लेश कम होंगे तो ही होगा। ये क्रिया योग से कम होगा। तो क्रिया योग मैंने जो बोला कि आपके तप करना पड़ेगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, द्वेष भावना क्या है, राग क्या है, रोज के रोज आप अगर करोगे तो दैट इज अभ्यास, दैट इज अ प्रैक्टिस। एंड क्लेशास द बर्डन्स एंड ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। सो उसको क्या करना है? तनु करना है। देखो यहाँ पे तनिष्का भी है, यहाँ पे तनु करके भी है। तो तनु का अर्थ स्लिम करना, तनु मीन्स थीन करना, छोटा करना। करणम, करणम मीन्स ये, करणम मीन्स इंस्ट्रूमेंट। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स? तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सो आगे जाके हम लोग अभी व्हाट इज द क्लेश? क्लेशास आर 5। अविद्या, द मदर ऑफ क्लेश। उसमें से अविद्या में से, इग्नोरेंस में से अस्मिता, आई इज देयर, आई वांट दैट, आई वांट बिग कार, आई वांट प्रमोशन। प्रमोशन के लिए लोगों को पीछे हटाते हुए जो उसके हकदार है उसको पॉलिटिक्स खेलते हुए या पॉलिटिक्स करते हुए अपने इच्छाओं को पूरा करना। अस्मिता, आईनेस। राग, अटैचमेंट, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको पाने के लिए आप लोगों के साथ में कॉम्पिटिटिव भाव रखते हो, लोगों को आप द्वेष भावना करते हो, तो दैट इज अ राग। अगर वो मिलेगा तो दिल मांगे मोर। अटैचमेंट है किसी वस्तु की, आपको पैसा चाहिए तो आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, तो आपको क्या लगता है? अरे और आना चाहिए, दिल मांगे मोर। और 20 लाख आएंगे तो मैं वर्ल्ड टूर करूंगी। अरे 40 लाख आएंगे तो मैं बहुत बड़ा बंगला बनाएंगे। अरे 50 लाख आएंगे तो मैं लंबोरी कार या कौन सी योग नई कार लूंगी।
या लूंगा। सो दिल मांगे मोर, राग कभी खत्म नहीं होता है। अगर ये नहीं मिलेगा, 10 लाख रुपए नहीं आएंगे या आपका जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी, तो क्या होगा? द्वेष भावना आएगी। क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मैं तो हकदार हूं इसकी, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, तो द्वेष भावना आएगी, एवर्जन। एंड अभिनिवेश, जो सबके पास है, हमारे जीवन की आसक्ति। जीवन में कितनी सारी उटक पटक होती है, एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी जीना है। आई वॉन्ट टू लीव, मरना नहीं है। ये जीवेशना, जीने की तमन्ना, ये पिछले जन्मों में से हमारी आती है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले जन्म में मृत्यु का अनुभव किया है। तो मुझे मरना नहीं है, ये कहीं पे तो एक रिकॉर्ड हुआ है, ये इंप्रेशन गिरा है, तो ये इंप्रेशन गिरा है, इसकी वजह से हमको जीवन की आसक्ति है। अभी कभी कई बार तो लोग सुसाइड करते हैं जीवन में, लेकिन वो दैट इज अ डिप्रेशन में जाके करते हैं। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल आदमी को अगर कोई बता देगा कि आपको मरना है कल, तो वो मरेगा क्या? नहीं मरेगा। आई वॉन्ट टू लीव। ओके, सो दिस इज द अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सो ये जो है ये क्लेशास, इसमें से मदर ऑफ क्लेशा, महाक्लेशा इज अविद्या, ignorance. Because of the ignorance we are running behind the materialistic things, money, बंगलो, नया मोबाइल, नई कार, सब कुछ नया नया, मेरे पास पुराना कुछ नहीं होना चाहिए। देन अगर ये पूरा हो जाएगा तो आपकी डिजायर्स बढ़ेंगे। राग मीन्स डिजायर, अटैचमेंट, अटैचमेंट with new things, whatever you the world is giving in front of you. नाउ अगर वो मिलता है तो पूरा होता है, तो नहीं मिलता है तो द्वेष भावना। देखिए यहाँ पे एक जो सांख्य योग में का दूसरा अध्याय में का 62 नंबर का श्लोक, ध्यायतो विषयान पूसा संगस्ते उपजायते। आपका ध्यान विषयों में आ गया तो वो आपका संग निर्माण होगा, आपको अटैचमेंट होगी, और संग आने के बाद आप उसको, अटैचमेंट होने के बाद द्वेष उत्पन्न होगा। तो ये सारी चीजें भगवत गीता में भी लिखी है, जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन डायरेक्टली आसन के ऊपर। आसन मीन्स व्हाट, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ आसन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आसन। महर्षि पतंजलि ने एक भी आसन नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ आसन की डेफिनेशन बताई है, वो भी 2.46 में। उसके पहले उन्होंने, मुझे लगता है कि 2.30 या ऐसा कुछ श्लोक हो, सूत्र होगा, उसमें ऐसा बोला है कि योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही विवेक ख्याति ही। अगर योग के अंग का आप अगर प्रैक्टिस करते हो, योग अंग को आप आपके लाइफ में लेके आते हो, उसका अनुष्ठान करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको अशुद्धि निकल जाएगी, दोष निकल जाएंगे, अशुद्धि क्षय। देन ज्ञान दीप्ति ही, प्रकाश, आप में का प्रकाश जागृत होगा। ऑलरेडी प्रकाश है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी धूल पड़ी है, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर के अलावा, अटैचमेंट, द्वेष भावना, जीवन की आसक्ति, एंड फ्रॉम अस्मिता देर आर सम षड रिपूज आर देर। तो ये निकल जाएंगे तो ज्ञान दीप्ति ही मिलेगी। अगर ज्ञान दीप्ति मिलेगी तो आपको विवेक ख्याति होगी, द डिस्क्रिमिनेशन पावर, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी, स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवत गीता में के। तो ये कब आएगा? अष्टांग योग को आप अगर अपनाओगे, प्रैक्टिस करोगे ना। उसमें से यमाज एंड नेमाज, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। यमाज 5 एंड नेमाज 5 ऑल्सो। यम मीन्स कंट्रोल,
यम के दो अर्थ होते हैं, यम मीन्स कंट्रोल और यम मीन्स द डेथ ऑफ गॉड। मृत्यु देवता कौन होते हैं? मृत्यु देवता, यमराज, गॉड ऑफ डेथ। हाँ, गॉड ऑफ डेथ। क्या करता है वो? क्या करता है यमराज, गॉड ऑफ डेथ? भैंसे Keeps पर an बैठता account है। of the day. हाँ, यहाँ से लेके जाता है। Keep an सब लोग खोलेंगे वीडियो। यमराज क्या करते हैं? he keeps a track of everybody's good deeds and bad deeds, and when the time comes, he comes to pick that person. ओके, मीन्स पॉपुलेशन को कम Control. करता है ना, कंट्रोल करता है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाला कौन है? मृत्यु देवता, यमराज, यमराज। गॉड ऑफ डेथ। तो वैसे ही ये यहाँ पे अभी देखिए दो अर्थ है, ये अर्थ नहीं लिखना है हमारे योग के इसमें। दूसरा अर्थ है कंट्रोल। अभी ये कंट्रोल सामाजिक वैयक्तिक ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल मीन्स कंट्रोल। कई बार यहाँ पे सिखाया जाता है कि सामाजिक कंट्रोल होता है, ऐसा होता है, वैसे सामाजिक वैसा कुछ नहीं है। अपने आप के लिए ये योग किसके लिए है? अपने खुद के स्पिरिचुअल पाथ के लिए, अपने खुद के एनलाइटनमेंट के लिए। तो यहाँ पे सामाजिक क्या पे आ गया? समाज में अहिंसा नहीं करनी है, आपके चित्त के अंदर अहिंसा नहीं करनी है। इफ यू आर वायलेटेड विद योर चित्त, तो चित्त डिस्ट्रैक्टेड होगा। अगर चित्त डिस्ट्रैक्टेड होगा तो आप यहाँ पे शांति से बैठोगे क्या? आप बोलेगे मरने दो, वो विजय सर का क्लास है, वो ऐसे ही कुछ कुछ बातें करते रहता है। शांत मन है, शांत चित्त है, इसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो। बिकॉज देर इज नो थॉट्स, नो वायलेंस इन यूर माइंड। तो वायलेंस कौन सा होता है? काया वाचा मनहा, शरीर के ऊपर मारना, शरीर से शरीर के ऊपर मारना। वाचा, आपकी जबान एक वेपन है, आप उसका उपयोग रोज घर में करते हो। सार्केस्टिकली, उपरोधिक आप बात करते हो, है ना? करते हो कि नहीं करते हो? होता है कि नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. सो बातों से लोगों को परेशान करना। एंड उसके बाद में लास्ट वेरी सटल, मन के अंदर इसने ना मेरा ये पैसा नहीं दिया है, 10,000 रुपया लिया था मेरा, अभी तो उसने 2 महीना हो गया पैसा नहीं दिया। तो मन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बुरा भला कहते हैं। तो किसका चित्त उद्दीपित हुआ, किसका चित्त डिस्ट्रैक्ट हुआ है? वो सामने वाला खुद 10,000 रुपया, 10,000 रुपया लिया उसका या आपका? खुद का सर। सिंपल है। तो लाइक दैट, these are all our personal level yamas. कंट्रोल यूर चित्त। यम में 5 प्रकार के यम होते हैं, दैट इज अहिंसा, काया वाचा मना आपको नहीं करना है कोई भी एक्ट। देन अस्तेय, चोरी करना। क्यों ऐसा चोरी करना क्यों लिखा है? क्यों यही क्यों चोरी क्यों, ऐसा क्यों? आपको प्रश्न नहीं आता है कि यहाँ पे सर ने, महर्षि पतंजलि ने क्यों ऐसा लिखा होगा चोरी करना या अस्तेय, चोरी मत करो करके बोला है उन्होंने, क्यों? देखो हमारे चित्त में ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अच्छी तरह मैं मेरे खुद का बताता हूँ। मुझे ना हर बार मैं गाड़ी में जब चलने जाता हूँ ना वॉकिंग के लिए, तो मुझे अगर कोई कार दिखी ना, नई कार मार्केट में आई हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार को मैं चाबी लेके मैं भगा के लेके जाऊं। ऐसे मन में बहुत बार आता है। क्यों आता होगा ये? क्या कारण रहेगा? इच्छा, हाँ, इच्छा, इच्छा, आसक्ति डिजायर, त्याच्याबद्दल. डिजायर। ओके, नहीं लेकिन हमारे चित्त में ये पहले से इनबिल्ट मेमोरी कार्ड डाल के महर्षि पतंजलि बोल रहे कि ये मेमोरी में हमारे आता ही है। हमारा जो जन्म मृत्यु, हमारा जो भी है, जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, उसमें हम लोगों का चित्त ऐसा बना हुआ है। हमको अगर किसी के सामने, अगर आपके सामने अगर मॉल में अगर एक 2,000 की नोट आपको गिरी हुई मिलेगी, तो आप उठा लोगे कि नहीं उठाओगे? या किसी को दे दोगे? ये किसका है, ये किसका है, आप बोलोगे और दे दोगे? नहीं, आप वो जल्दी से उठा के आपकी जेब में डाल दोगे। होता है कि नहीं?
ये दूसरे की मालमत्ता है या दूसरे की प्रॉपर्टी, वो हम लोग उसके ऊपर अधिकार दे देते हैं। तो ये हमारे मन में ही, संस्कारों में ही बना हुआ है कि फ्री में या कोई ऐसी चीज मिले तो हम लोग उसको उठा के ले लेते हैं, हमारे इसमें रख देते हैं हमारे पास। तो अस्तेय, चोरी न करना। तो चोरी न करना क्या क्या होता है, किसी के नोट्स लेके उसके अपने नाम डाल के मेरा ही है ऐसा अगर कोई करता है तो वो भी चोरी है। अगर किसी को टाइम दे दिया, 2 बजे का टाइम दे दिया धारणा, कल्पना और श्रद्धा और अनुप्रिया को, और 2 बजे मैं नहीं आया, 2:15 में आ गया, तो 15 मिनट की चोरी मैंने आपकी की। तो यहाँ पे इसके लिए अस्तेय बोला है, चोरी न करना। देन आता है, कौन सा आता है, मैं भूल गया। ब्रह्मचर्य हाँ, अपरिग्रह, सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा सत्य अहिंसा अस्तेय पहले आएगा। ब्रह्मचर्य अपरि देखो यहाँ पे आपका यमाज और नियमाज ही आपको सीक्वेंस में नहीं मालूम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो फिर आपने बताया क्यों नहीं, मैंने अस्तेय बताया, सत्य क्यों नहीं बोला आपने पहले। तो इसके लिए मैंने ये गलती किया था कि मैंने आप सत्य बोलना चाहिए, सर सत्य रह गया है आपका बीच में ही। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दिस इज द सीक्वेंस। सत्य तो हमारा भारत देश का जो है, भारत देश की जो पर्सनैलिटी है, भारत देश की पर्सनैलिटी बाहर के देशों में क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते। सांप्रदायिक राज्य। नहीं नहीं नहीं, हमारा जो देश है बाहर के देशों में उसकी आइडेंटिटी या उसका पर्सनैलिटी, जैसे विजय सर की पर्सनैलिटी आप लोग जानते हो, वैसे ही भारत देश की भी एक पर्सनैलिटी है, अमेरिका देश की भी एक पर्सनैलिटी है, चाइना देश की भी एक पर्सनैलिटी है। चाइना देश की पर्सनैलिटी क्या है? चीप प्रोडक्ट्स। अच्छा, और कम्युनिस्ट, चीटिंग करना, है ना। और Cheating. हाँ, और अमेरिका बार बार धमकी देता है, तो क्या है, पावर का मिसयूज करता है। मिसयूज करता है। तो पावर में हम लोग ये डाल देंगे, हम लोग अणु बम डाल देंगे, हम लोग एटम बम डाल देंगे, है ना। बार बार हम लोगों को धमकी देता है ना, सभी को देता है धमकी वो। तो वैसे भारत देश का भी एक पर्सनैलिटी है, दैट इज स्पिरिचुअल पाथ। हमारे देश में 2 चीजें बहुत अच्छी बनी है, दैट इज अ ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक एंड योग। These are, we are spreading towards all the side, in all the world. हाँ, जैसे ऋग्वेद में बताया कि सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसा किसी का नहीं है देश, ये संस्कार या जो भी कल्चर, ऐसा किसी का नहीं है। तो हम लोग जो है वो धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी, हम लोग स्पिरिट के बारे में बातें करते हैं। तो हमारा जो भी देश है वो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। ये भी एक उपनिषद में से लिया है, अभी उपनिषद का नाम मालूम नहीं है, सत्यमेव जयते कहाँ पे लिखा है, लेकिन हमारे उपनिषदों में से ही आया है। नाउ अस्तेय बता दिया आपको मैंने। देन ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्म का मीन्स अपने आप का अभ्यास करना, अपने अंदर ब्रह्म रह रहा है, अपने अंदर भगवान रह रहे हैं, तो ब्रह्म का अभ्यास करना, आचरण करना मतलब ब्रह्म का ब्रह्मचर्य करना। और एक इसका अर्थ ऐसा है कि ब्रह्मचर्य मीन्स आपकी सेंसुअल एक्टिविटी के ऊपर आपको कंट्रोल लाना, दैट इज अ ब्रह्मचर्य। देन अपरिग्रह। अभी अपरिग्रह देखो, आप क्या क्या करते हो, आप सब परिग्रह करते हो। जो भी चीजें हैं आपके घर में, बहुत सारी साड़ियां हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, कब्बड़ भर गया है, लेकिन कब्बड़ ऐसा खोल देंगे तो वो सब कपड़े आपके पैरों के नीचे आ जाएंगे, पैर पड़ेंगे आपके। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास कुर्तीज नहीं है, मेरे पास साड़ियां नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास शर्ट्स नहीं है। तो ये बोलेंगे साड़ियां, और ये हमारे पे ही बोल रहे हैं सर, सर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे टी शर्ट्स हैं लेकिन मेरे पास टी शर्ट ही नहीं है। तो अपरिग्रह, परिग्रह करना, जो ज्यादा चीजें है उसको परिग्रह करना।
वैसे हमारे मन में भी हम लोग परिग्रह करते रहते हैं। 10 साल पहले मुझे ऐसे ऐसे व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे इंसल्ट किया था, अभी तक छूटा नहीं है, परिग्रह किया है, उसको अपरिग्रह करना है। तकलीफ आपको होगी तो अपरिग्रह। ओके, दीज आर द यमास एंड नियमास, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहला शौच, काया वाचा मनः, आपको शौच पालना पड़ेगा। असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं करना है, स्नान करना है, विचारों की भी शुद्धि लानी है, सत्व शुद्धि, विचारों में भी शुद्धि लानी है। शौच, शरीर मन और वाचा, उसके ऊपर शौचता लानी है। देन संतोष, कंटेंटमेंट, समाधान। संतोषात अनु उत्तम सुख लाभ। यहाँ पूरे वर्ल्ड में कौन सुखी है? क्या कोई सुखी है? 700 करोड़ की आबादी है। देयर आर 700 करोड़ पॉपुलेशन। ऑल आर सुखी या सम फ्यू आर सुखी? अरे इंटरैक्टिव है, बोलो बोलो थोड़ा सा। Misery is always there. सुखी असा कोण आहे? Most of them are not Sukhi, in fact. मराठी में हमारे जगी सुखी जगी कोण सर्व आहे रे, सुखी असं कोण आहे? विचारे मना तुझी शोधून पाहे. शोधुनी पाहे। रामदास स्वामी, स्वामी रामदास ने ये बताया है कि हमारे मन को पूछो कि कौन ऐसा जग में सुख है? कोई नहीं है। एवरीवन इज दुखी। अभी आप बोलोगे मुकेश अंबानी की बीवी वो तो सुखी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो बताओ, मुझे ऐसा बताओ, वो मुकेश अंबानी की बीवी रास्ते के ऊपर खड़े होके भेल खा सकती है क्या? जैसे हम लोग चौपाटी के ऊपर जाके भेल खा सकते हैं। True, sir. They are missing all this enjoyment. हाँ, है ना? उसको भेल क्या, उसको कोई भी लेके आएगा, कितने करोड़ों की भेल लेके आएंगे, लेकिन खा सकती है क्या? नहीं खा सकती। तो वो सुख है क्या? उसको नहीं है। तो संतोष, समाधान होना बहुत जरूरी है। आज के दिन में मैं कुछ तो नया मैंने सीखा है। आई एम वेरी संतुष्ट, आई एम कंटेंट, आई एम कंटेनमेंट, आई हैव समाधान। My desire are something fulfilled by some knowledge. I get some knowledge from anything, anywhere. You can, whatever you got the knowledge, समाधान होना है। सबसे अहम चीज क्या है? हम लोग देखो जिंदगी में, हमारे जीवन में क्या करते हैं? सिर्फ अनुभव ही हम लोग लेते हैं, सिर्फ अनुभव का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छे से कोई तो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, बहुत बढ़िया लगा। आज हम लोगों ने कुछ नया सीखा, अनुभव लिया। कल परसों और कुछ आप पैसा कमाओगे, कहीं पे घूमने जाओगे, अनुभव लिया। जिंदगी भर जब तक मरते नहीं है तब तक हम लोग अनुभव लेते रहते हैं। तो अनुभव लेना है संतुष्ट भावने से। नाउ तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, जो यमाज में लिखा है, जो हम लोगों ने क्रिया योग में देखा। तप मीन्स तपति, आपको शरीर से तपना पड़ेगा, आपको आपके विचारों से तपना पड़ेगा, आपको आपके मन से तपना पड़ेगा, मन को भी कल्टीवेट करना पड़ेगा। जैसे चित्त प्रसादन में देखा है हम लोगों ने, बहुत सारे टेक्निक्स बताया है महर्षि पतंजलि ने। Sir, are you slides? No, 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 no. I am just telling. Because there is no slide of yamas niyamas. यमा नियमा चल रहे हैं ना अभी। Fine. हाँ। और उसके बाद में फिर स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधानानि, वो जो हम लोगों ने देखा। अभी ये होने के बाद, यमाज नियमाज होने के बाद आसन आते हैं। अनुप्रिया का डिजायर जो है कि स्लाइड हम लोग ओपन कर दें, तो मैं उसके लिए उसकी स्लाइड ओपन कर रहा हूं। सो आसन, आसन मीन्स व्हाट? आस, इस शब्द से आसन ये शब्द बना है। द डेफिनेशन गिवन बाय महर्षि पतंजलि, स्थिर सुखम आसनम, नॉट स्थिरम, स्थिर सुखम आसनम। सुखम है, सुख नहीं है,
याद रखो, स्थिर सुखम आसनम ऐसा बोलना है। 2.46 The practicing yoga with strength and in a relaxed manner gives rise to harmony with the physical body. Yes. अब यही डेफिनेशन भगवत गीता में भी बताई है। Slide is moving. Yeah, slide is open now. No, it's not sure. One minute. No, we are not able to see. 1 minute. We are not able to see. 1 minute. Now, Not No, yet. sir. Yeah, now we can see, sir. हाँ, दिख रहा है अभी? अनुप्रिया? Yes, sir. Okay, done. Now आसन, मैं कहा था आसन. आसन as per महर्षि पतंजलि स्थिर सुखम आसनम. Like that, भगवत गीता में भी इस टाइप की डेफिनेशन बताई है. That is समम काया शिरो ग्रीवा. आपका शरीर जो है, आपकी गर्दन जो है, आपका सिर जो है, एक लाइन में होना चाहिए. दैट इज अ मेडिटेटिव पोज. तो आसन के डेफिनेशन भगवत गीता में भी लिखी है, समम काया शिरो ग्रीवा. एंड हियर स्थिर सुखम आसनम. स्थिर मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, स्टेबल, मोशनलेस. सुखम मीन्स कंफर्टेबल, ease, filled and happy, light, relaxed. Asan means posture, seated position, physical practice. Now how to do Sthira Sukham Asanam? Then the second sutra. The second sutra is Prayatna Shaithilya Ananta Samapatti Bhyam. Bhyam means दोनों, दो चीजें करनी है. क्या करनी है? प्रयत्न भी करना है, एफर्ट भी डालने हैं, शैथिल्यता भी लानी है. ये दो हो गए. और अनंत में समाना है. तो अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? द की टू सक्सेस इन दिस रिगार्ड इज प्रैक्टिस विद द एफर्ट्स which becomes progressively easier combined with deep contemplation. Samapatti means contemplate. समम काया शिरोग्रीवा, स्थिर सुखम आसनम. आपको आपके बॉडी के ऊपर पहले मेडिटेट करना होगा. दैट इज अ बॉडी अवेयरनेस. प्रयत्न करना पड़ेगा. टेंशन इज देयर, सम इज यू आर मूविंग एंड यू आर टेकिंग द एफर्ट फॉर स्पाइन इरेक्टेड एंड नेक शुड बी स्ट्रेट एंड हेड शुड बी स्ट्रेट. यू आर टेकिंग द टेंशन और यू कैन टेकिंग द prayatna, effort. Then Shaitilyata, whatever you are took your position, you have to smiley face and smile. Wow, I am taking this posture which is very relaxed. अगर आप अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में, सुखासन में, कोई बंदा अलग अलग इसमें सुख कारक पोज ले सकता है. यू कैन टेक ऑन योर ओन पोजिशन. देन अनंत, अनंत मीन्स लिमिटलेस, इन्फिनाइट. ये जो थोड़ा जो है ये आगे वाली स्टेज है. तो इसके पहले क्या करना है हमको? इन्फिनाइट में जाने से पहले हम लोगों को बॉडी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. देन ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान पड़ेगा. देन वॉट एवर इन कॉन्टम्पलेटिंग और थॉट्स कमिंग इन योर माइंड, यू आर विथ दैट इन अ प्रेजेंट टाइम. दैट इज अ प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम. अनंत समापत्ति इज अ मेंटली यू हैव टू लुक द थॉट्स वॉट एवर कमिंग इन योर माइंड. Okay, this is procedure of doing asan. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, what is the definition of asan and what is the procedure for doing that asan? तो ये बताना है. The next benefit of the asan, tato dandva abhinaghatah. Tato means that, from the mastery of that posture, द्वंद्व अन अभिघात. अभिघात मीन्स अटैक. अभिघात मीन्स आपको तकलीफ दे रहा है उससे. अन अभिघात मीन्स नहीं तकलीफ देने वाला. देखिए यहाँ पे मैंने किया है. ओके. द्वंद्व मीन्स पेयर्स ऑफ द अपोजिट्स, dualities, the dualities of life or dualities of your muscles also. आपका पोस्चर अगर थोड़ा सा कांपने लगा है तो देयर इज अ मसल ड्युअलिटी ऑल्सो.
your mind is not calm, there is a duality also. Your brain is not calm, there is a duality also. It will be destroyed, it will be vanish by doing asana. Then anabhighatah, an लगाया है मैंने, अभिघात नहीं बुलाया. अभिघात means attack. Anabhighata means freedom from attack, victory and mastery. Okay, these are the 3 sutras you have to tell. आंखें बंद करके सपने में भी ये अगर आपको पूछा जाएगा तो ये बोलना है. Now, before that, the benefit of asana. Okay, ये होने के बाद प्राणायाम आता है. What is mean by pranayam? प्राणायाम, प्राण means vital force, vital energy, and आयाम, सी देखो यम आ गया यहाँ पे, आयाम, यम है ना. तो यम means what? कंट्रोल. तस्मीन सती, तस्मीन सती मतलब उस अवस्था में आप एक्सपर्ट बनने के बाद. तस्मीन सती means being accomplished after that आसन. श्वास प्रश्वास, सांस लेना और छोड़ना. योह गति विच्छेदा, दिस इज द गति यू हैव टू ब्रेक डाउन. जो सांस लेने की छोड़ने की इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है उसको होल्ड करना है, रोकना है. दैट इज अ प्राणायाम. सी तस्मिन सती मीन्स आफ्टर दिस, आफ्टर आसन, being accomplished. श्वास means inhalation, prashwas means exhalation, gati means the movement, and vichhed means interruption, breaking, ceasing, and mastering. And prana means life force, and ayam means bind or regulate, and pranayam means harmony with the life energy. Yoga breathing exercises. अभी योग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनको समझाने के लिए ओके, बट हम लोगों को, इंडियन लोगों को यही शब्द यूज करना है कि प्राण आयाम, आपकी प्राण शक्ति को कंट्रोल करना, प्राण शक्ति को संयम करना. दैट इज अ प्राणायाम. ओके, तो महर्षि पतंजलि ने श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करने को प्राणायाम बोला है. नाउ द नेक्स्ट प्राणायाम कितने हैं? तो 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने. तो कौन से हैं? बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म. मीन्स व्हाट? बाह्य, बाहर की तरफ सांस छोड़ने के बाद होल्ड इट, अंदर में सांस लेने के बाद होल्ड इट, और इस बिटवीन में होल्ड करना है विथ एफर्ट. दैट इज अ स्तंभ वृत्ति. 3 प्रकार के प्राणायाम ये सूत्र में बताया है. और वो कैसे बदलेंगे? देश, जिस तरह से रीजन बदलता है, कुरुक्षेत्र में है तो अलग से वातावरण है, मुंबई में है तो अलग से एटमॉस्फियर है, साउथ इंडिया में है तो अलग से एटमॉस्फियर है, पूना में है तो थोड़ा सा कूल एटमॉस्फियर. तो देश के जैसा वो चेंज होगा. काल, अगर ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उस हिसाब से संख्या भी, आपके संख्या मीन्स नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे. एंड परिदृष्टो मतलब क्या? परिदृष्टो मतलब, यहां पे मैं बता रहा हूं, लिखा है कहां पे, देखिए, अभ्यंतर स्तंभवृत्ति देश काल संख्या भी. परिदृष्टो मीन्स मेजर्ड, that is a regulated, precisely observed, very subtle. दीर्घ सूक्ष्म, नीचे आगे वाला शब्द है दीर्घ सूक्ष्म. you have to observe your breathing very subtle, very concisely, precisely observed it, verified it precisely. that is a प्राणायाम. 3 प्रकार के बताए हैं. बाह्य means external, while exhale hold it, inhale hold it, and with effort you have to hold inside or outside. that is a 3rd प्राणायाम. ओके, ये देश काल संख्या के अलावा बदलते हैं. नाउ 4th one प्राणायाम, that is a
बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः मीन्स व्हाट, बाह्य भी नहीं, इंटरनल, अभ्यंतर भी नहीं, इंटरनल भी नहीं, विषयों के साथ में, रीजन स्फीयर विषय के साथ में नहीं है, ऐसा बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम मीन्स विषय के परे, ऊपर, वहां पे कोई भी थॉट नहीं है, वहां पे कोई भी विचार नहीं है, दैट इज अ केवल कुंभक अवस्था। अभी केवल कुंभक यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। केवल कुंभक मीन्स व्हाट, देयर इज नो थॉट, नो माइंड, नो एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन दैट स्टेट, दैट इज अ केवल कुंभक अवस्था। वो यहाँ पे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। बाह्य भी नहीं, अभ्यंतर भी नहीं, विषय भी नहीं, वहां पे आक्षेपी, आक्षेपी मीन्स व्हाट, विषया, रीजन और बाह्य अभ्यंतर, एक्सटर्नल, रिटेंशन, ब्रीथ रिटेंशन, विषयाक्षेपी, ब्रीथ रिटेंशन आफ्टर इनहेलिंग। देखिए ये अवस्था जो है, कपालभाति करने के बाद आपको एक अवस्था प्राप्त होती है 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए, कि शरीर को सांसों की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर को सांसों की जरूरत होती है, वो शुरू होती है, द फर्स्ट ब्रीथ इज गोइंग ऑन, बट एक समय ऐसा आता है कि सांसों की जरूरत नहीं लगती, दैट इज प्राणायाम मीन्स इट इज सिमिलर लाइक अ केवल कुंभक, द चतुर्थ प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। अब इसके फायदे क्या क्या है, तो फायदे, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्रकाश जो है, प्रकाश के ऊपर बहुत सारे आवरण पड़े हैं। अभी हम लोगों ने अभी देखा कि विषयों का वा ज्योतिष्मति, लाइट इज देयर, बट उस लाइट के ऊपर अस्मिता के जो अलग अलग 6 पहलू है, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर एंड लोभ, एंड इस आवरण के वजह से वो लाइट जो है वो चमक नहीं रही है। देन दिस विल बी रिमूव और इट विल बी अ थीन, द प्रकाश विल बी ग्लो और स्पार्कल, तो आपके अंदर की लाइट जो है वो और चमकेगी। जैसे आपके घर में बल्ब होगा या ट्यूबलाइट होगी, तो ट्यूबलाइट के ऊपर बहुत दिनों से आपने वो सफाई नहीं की होगी, वो ट्यूबलाइट के ऊपर बहुत सारा कचरा पड़ा होगा, डर्ट होगा, धूली कण होगा, मिट्टी होगी, वो मिट्टी को आप अगर पोंछ देंगे कपड़े से या पानी के कपड़े से उसको पोंछेंगे, तो उसके बाद में क्या होता है, ज्यादा प्रकाश गिरता है, लाइक दैट। अभी प्रकाश है लेकिन वो कम अवस्था में, आप उसको अगर अच्छे से प्राणायाम करोगे, प्राणायाम परम तप, तो आपकी नाड़ियां शुद्धि हो जाएंगी, नाड़ियां शुद्धि होंगी तो आपका शरीर अंदर से चमकना शुरू हो जाएगा, एंड लाइट विल बी इल्यूमिनेट द पावरफुली, लाइट इज इल्यूमिनेटिंग बट इट इज नॉट पावरफुल। नाउ धारणा सूच मनसा योग्यता, यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, धारणा सूच मनसा योग्यता, मन जो है, जो मेंटल है, जो माइंड है, वो कैपेबल बनता है, कैपेसिटी, अभी आ गया मेंटेलिटी जो है, मेंटल आ रहा है आवाज, अभी आ गया मेरा इंटरनेट थोड़ा सा ये है, ओके। सो मन जो है आपका, वो उसकी क्वालिटी बढ़ती है, इलिजिबिलिटी बढ़ती है। अभी जो आपका मन है ना, वो इलिजिबल नहीं है, जब आप प्राणायाम करोगे तो इलिजिबल बन जाओगे, किसके लिए, धारणा के लिए, एंड धारणा इज अ मोर पावरफुल टेक्निक। धारणा करना मतलब भी इजी नहीं है, धारणा में आपके पूरे सेंसेस को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, इनसाइड, अंदर की तरफ, और उसको अंदर की तरफ लेके आना पड़ता है, तो धारणा के योग्य बनता है आपका मन। फिटनेस बोलते हैं ना, गाड़ी चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिटनेस फॉर प्राणायाम, सॉरी धारणा, फिटनेस फॉर धारणा, ओके। नाउ दिस इज अ प्रत्याहार, हम लोग प्रत्याहार हम लोग बाद में देखते हैं, वी विल सी। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, रुकते हैं।